Good afternoon, everyone. I, Dr. Alok Anjali, working as a assistant professor in Urmila Devi Ayurvedic College, Hoshiarpur. I welcome you all in the today's Ayush Vivodhini webinar, which is organized by Shrimati Urmila Devi Ayurvedic College, Hoshiarpur. Firstly, I would like to thank our chairman, Sir, Engineer Amarjeet Singh Balia, sir, for their continuous efforts for organizing such a type of event. I would also like to thank our principal ma'am, Dr. Minakshi Nath, vice principal ma'am, Dr. Mridu Sharma, and chief coordinator of this event, Dr. Deepika Bhandari, ma'am, for their continuous efforts for organizing this webinar. I would also like to extend my warm welcome to all the delegates who have joined this webinar. Now, before moving forward, I request our principal ma'am, Dr. Minakshi Nath, to say few words about today's webinar. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Alok. Good afternoon to one and all, and a warm welcome to all delegates on the very first day of Ayush Vibodhini Webinar Series 2. Ayush Vibodhini Webinar Series 1 proved to be a great achievement in terms of valuable knowledge shared by our eminent guest speakers. It made us learn that online platform of studies can work wonders. For that, for your well grateful to organizing committee of Ayush Vibodhini for their dedicated efforts and the center of gravity, that is speakers, for accepting our invitation to share their valuable knowledge on this platform. Today also, on this very special day of first day of Ayush Vibodhini webinar, I take the pride to welcome Dr. Dharmender Mishra as our guest speaker. He is an associate professor in the Department of Rachna Sharir at Rajkot, Gujarat. And I am glad to share that Sir has started his teaching career from Srimati Urmila Devi Ayurvedic College. He is admired and remembered fondly by his students. His command on the subject at those early days was so powerful that I am sure that till date he has become a gem of Rachna Sharir. So Ayush Vibodhini Series 2 is all set to get its start from his precious words. So with a note of thanks to Dr. Dharmender Mishra, I welcome you, sir, for sharing your knowledge on the topic nervous system, which makes students nervous always. And I am sure that your words will make this complicated topic. Thank you again, Dr. Dharmender Mishra. Over to you, Dr. Alok. Now, I would like to welcome our today's guest speaker, Dr. Dharmendra Mishra, sir. Sir has graduated from State Ayurvedic College, Lucknow, and done his postgraduate and doctorate from National Institute of Ayurveda, Jaipur. He has started his teaching journey from Shrimati Urmila Devi Ayurvedic College, Hoshiarpur in September 2012. He has 8 years of teaching experience in UG and PG courses and has published 2 books and 21 articles in national and international peer-reviewed journals. At presently, Sir is working as an associate professor in Indian Institute of Ayurveda and Research in Rajkot. So we all are very lucky to have a sir today. So without making any delay, I request Dr. Dharmendra Mishra sir to continue this session. Over to you, sir. Hello, sir. You are not audible. डॉक्टर दीपिका सर आपको ऑडिबल है या ऐसा कि मुझे ही नहीं मैम आवाज नहीं आ रही है सर की नहीं सर आवाज नहीं आ रही
इस आवाज नहीं आ रही है सर, अभी भी नहीं आ रही है। माइक ऑफ है सर का। माइक ऑफ। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो हेलो सर, आवाज बीच में आवाज आई थी 2 सेकंड के लिए, अभी फिर से आवाज नहीं आ रही है। Sir, unmute your phone, unmute. Hello? Hello, sir? Hello? Sir, it's a network error. He is unmute. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर वहाँ मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है, सर रीजॉइन हो रहे हैं, प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, अभी रीजॉइन हो जाएंगे सर। हेलो, हाँ मैडम, अब आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है अब। अच्छा, अब मैं कैमरा भी ऑन करता हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी, और शेयर करने के लिए, हाँ अब मुझे भी मेरी पिक्चर दिखाई देने लगी है लैपटॉप पे, और शेयर करने के लिए मैं यहाँ से ओपन शेयर ट्रे में जाके शेयर कर सकता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी to give a guest lecture. Though it is not a guest lecture, but it is a regular lecture of a first year BMS. But it can be helpful to all of you. So I would like to give first of all my thanks
to the Walia sir and respected Madam Principal Meenakshi Madam. So good afternoon to all of you students. मैं कोशिश करूंगा, चूंकि आप लोग हिंदी में नहीं लिखते हैं, शायद हिंदी में ही लिखते हैं, इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, तो मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में ज्यादा बेटर समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी जाएंगे जल्दी। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाना है मुझे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम है क्या, हम पहले ये देखेंगे। तो आई होप शेयर हो गया मैडम। यस सर शेयर हो गया। तो ये पावर पॉइंट शो में है या नहीं है? शो में नहीं है शायद। ये नहीं मुझे पता, ऐसा मुझे आइडिया नहीं सर। नहीं, पर साइड ये है में कि मैडम आपकी वो बार्स presentation बन के आ रहे हैं, show मुझे हो रही है। दिखाई दे रहा है। ओके अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, मैं फिर से करता हूँ, समझ गया मैं। मुझे लग रहा है नेटवर्क की वजह से थोड़ा धीमा चल रहा है। जी सर। और नेटवर्क हमारे यहाँ थोड़ा कम आता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, अब शायद शेयर हो गया, पावर पॉइंट शो में हुआ है। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, यस अब सर देखता हूँ ये चेंज होता है या नहीं। हाँ जी। हाँ, चेंज तो हो रहा है। बट सर हमें नहीं शो हो रहा है। हाँ, वही Slide मैं भी देख रहा हूँ। अब हाँ, हुई, बड़ी अब हुई। डिले है, काफी हाँ जी। डिले है। हाँ जी। कोई बात नहीं मैडम, चलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ। बच्चे मेरी शक्ल तो देख ही चुके होंगे, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अब सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। हाँ, सो अगेन गुड आफ्टरनून। हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि नर्वस सिस्टम जिससे सब लोग भागते हैं, कहते हैं कि नर्वस सिस्टम बहुत टफ है, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप टफ से टफ काम आप अपने ही नर्वस सिस्टम से डेली करते हो, तो फिर जिस टफ से टफ काम को आप कर सकते हो जिस सिस्टम के थ्रू, वो सिस्टम कैसे टफ हो सकता है? वो टफ नहीं हो सकता। बस हम थोड़ा उसको सुन के ऐसे डर जाते हैं कि नहीं नर्वस सिस्टम टफ है, पर आपके लिए मैं सोचता हूं कि आप इसको पढ़ने के बाद शायद आपको टफ नहीं लगेगा। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि नर्वस सिस्टम है क्या, और न्यूरोलॉजी, दो वर्ड हम ज्यादा सुनते हैं। तो नर्वस सिस्टम
आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नर्वस सिस्टम इज द सेल टिश्यू एंड द ऑर्गन दैट रेगुलेट्स द बॉडी रिस्पॉन्सेज टू द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मींस एक ऐसा कलेक्टिव सिस्टम ऑफ द सेल है पूरे पूरे सेल्स का, और उससे उन सेल से बनी हुई टिश्यूज का और अदर कुछ ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के साथ मिलके ये बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंटल या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग स्टिमुलस जो पैदा हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी में परसेप्शंस आ रहे हैं, उन परसेप्शंस को रिसीव करना और उनके रिस्पॉन्स देना उनके साथ में, ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम करता है। और एक इसमें है क्या क्या चीजें, नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन है जो हमारे सिर में होता है, स्पाइनल कॉर्ड है जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में है, और कुछ उससे जुड़े हुए कई सारे फाइबर्स हैं जिनको हम नर्व्स जानते हैं नर्व्स के नाम से, और कुछ छोटे छोटे आप कह सकते हैं सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम गैंग्लिया कहते हैं। एंड द पार्ट्स ऑफ द रिसेप्टर एंड द इफेक्टर ऑर्गन्स, इसमें कई सारे पार्ट्स रिसेप्टर और इफेक्टर के ऑर्गन्स हैं जिन ऑर्गन्स के साथ इनका लेना देना रहता है। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बॉडी का जो कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स के लिए कनेक्ट करता है, और हमें पूरी बॉडी को एक समग्र रूप से या एक होल बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी रिस्पॉन्स रिसीव करने और रिस्पॉन्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस सिस्टम को हम स्टडी करने जा रहे हैं उस स्टडी को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इज द साइंस विच गिव्स द स्टडी डिटेल स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में मेन हमने अभी देखा कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नाम तो जानते ही हैं एटलीस्ट, लेकिन जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको पहले जाने ताकि हम उन बड़े स्ट्रक्चर्स को आसानी से समझ सकें। तो आपको पहले से पता है, हम 9th से 11th तक 12th तक पढ़ते आ रहे हैं नर्व। नर्व क्या है? नर्व इज एनाटॉमी। एनाटॉमी की भाषा में अगर कहें तो नर्व इट इज ए ग्लिस्टनिंग व्हाइट कॉर्ड लाइक बंडल ऑफ फाइबर्स। सो आप ये कंफर्म हो जाइए सबसे पहले कि नर्व जो आप देखते हैं, आपने एनाटॉमी के डिसेक्शन लैब में आपने जाकर जो भी देखा है, जो आपने हाथ से फील किया है जब आप डिफरेंशिएट कर रहे थे कि क्या है आर्टरी, क्या है वेन और क्या है नर्व, जब आप उस अपनी फिंगर और थंब के बीच में उसको फील कर रहे थे, तब आपकी ये समझ में आया था कि दिस इज अ कॉर्ड लाइक बंडल, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये पिचकता नहीं है। तो आपने कहा नहीं सर ये नर्व है, बट ये नर्व ने है, लेकिन अब आप ये जानेंगे कि दिस इज ए नर्व, जो जिसको हम नर्व कह रहे हैं, ये बहुत सारे फाइबर्स का बंडल है। वैसे ही बंडल है जैसे एक बड़ी सी केबल आप देखते हैं, उस केबल या एक वायर आप देखते हैं, उस वायर के अंदर कई सारे कॉपर्स के फाइबर्स बहुत सारे ढेर सारे रहते हैं। तो नर्व जिसको आप देख रहे हैं वो कई सारे फाइबर्स का बंडल है, और वो बंडल कैसा है? सराउंडेड बाय अ शीथ। जैसे कि आप वायर देखते हैं, वायर के ऊपर एक शीथ लगी होती है। क्यों लगी होती है? ताकि आपको करंट ना लगे। तो यहां पर क्या उसका फंक्शन है वो हम बाद में देखते हैं, बट ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है कवर्ड बाय अ शीथ, और फंक्शन क्या करता है? दैट कनेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, जो रिस्पॉन्स करने वाला ऑर्गन है और जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है या जिसको रिस्पॉन्स करना है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनको, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। तो the nerves conducts impulses towards or the away from the central nervous system. Central nervous system, हमारे पास नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो जाते हैं जो हम +2 से पढ़ते आ रहे हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS के नाम से जानते हैं, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS के नाम से जानते हैं। तो क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और क्या है PNS, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। तो हमारे पास एक नर्व है जिसको हम नर्व कह रहे थे, देख चुके हैं डिसेक्शन हॉल में, बट इट इज ए कॉर्ड लाइक बंडल ऑफ फाइबर्स। और वो फाइबर्स क्या हैं वो भी हम देखते हैं, बट हम उसके पहले अभी आपने एक न्यूरोलॉजी पढ़ा, वर्ड स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, लेकिन हम यहां आपको एक नया वर्ड दे रहे हैं, न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो न्यूरो एनाटॉमी और न्यूरोलॉजी
दो अलग अलग टर्म हैं। न्यूरो एनाटॉमी जब आप केवल और केवल उसके स्ट्रक्चर से आप डील करते हैं, जो नर्वस सिस्टम के सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको जब आप अपनी एनाटॉमी में की क्लास में देखते हैं तो हम उसको न्यूरो एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन अगर वही सारे स्ट्रक्चर्स अपना फंक्शन शो करते हों और फंक्शन के साथ जब आप उनको क्लिनिक में देखते हैं, क्लिनिक में आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं या उस सिस्टम के फंक्शन के बेस पर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है या इसमें नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं हैम्पर्ड है, तो आप उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमी, branch of the anatomy which deals with the structures of the nervous system, whereas the neurology is the study of the branch of the medical science which deals with the anatomy as well as the physiology of the nervous system. So neuroanatomy is the study of the relationship between structure and the function. अब जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उस स्ट्रक्चर को हम सिर्फ देखकर नहीं कह सकते कि ये काम क्या करता है, क्योंकि हमारे पास न्यूरोलॉजी जो आपने अभी कहा, न्यूरो एनाटॉमी हमने आपसे कहा स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, लेकिन ये नर्वस सिस्टम का ही स्ट्रक्चर है ये आप कैसे जानेंगे? ये आप तभी जान सकते हैं जब आपको उसका फंक्शन पता हो। और फंक्शन ये मीन्स कहने का कि जो नर्वस सिस्टम की आप स्टडी करते हैं वो अकेले स्ट्रक्चर के बेस पर नहीं कर सकते आप उसको, फिजियोलॉजी भी उसको लेकर ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनको कि आप फिजियोलॉजी के बेस पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बिना फिजियोलॉजी के एनाटॉमी को आप आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स फिजियोलॉजी के बेस पर ही आइडेंटिफाइड होते हैं। तो न्यूरो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इन द नर्वस सिस्टम। न्यूरो एनाटॉमी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज द मैक्रोस्कोपिक। दोनों जो छोटे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं या जो बड़े हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, इन सभी के साथ हम डील करते हैं। सो अब देखते हैं कि हमारे पास जो ये नर्वस सिस्टम है जिसको हमने बड़े बड़े पार्ट में डिवाइड किया, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व है, पेरिफेरल नर्व्स हैं, तो उनमें से जो ये पूरा पूरा सिस्टम बना है उसमें टिश्यू कौन सा है? तो टिश्यू इन द नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो टिश्यू इज विद द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल, ये एक ऐसा टिश्यू है जिसके भीतर स्पेशल प्रॉपर्टी है, और वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्ट द इंपल्सेस रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जो इंपल्सेस हैं, तरंगे हैं, उन तरंगों को ले जाने का ये काम करता है। बाकी और किसी स्ट्रक्चर में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये जो नर्वस सिस्टम का टिश्यू है ये स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है अपने पास, जो कि इंपल्सेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। दीज आर द मेड अप ऑफ मेन फंक्शनल यूनिट। इसकी जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो हम आप बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, इसको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स, अभी हमने एक वर्ड देखा नर्व, और अब नया वर्ड आया हमारे लिए, नया नहीं है बट अब हम उसको जो जानेंगे तो उसे हमें नया ही लगेगा, न्यूरॉन्स। सो नर्व और न्यूरॉन के बीच क्या रिलेशन है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे अभी। सो दीज न्यूरॉन्स इन द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आर सपोर्टेड बाय द स्पेशल काइंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड द न्यूरोग्लिया। सो अगर बात करें हम नर्वस सिस्टम के पूरे पूरे मेन बेसिक स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास दो बेसिक स्ट्रक्चर आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है न्यूरॉन और दूसरा स्ट्रक्चर आता है हमारे पास न्यूरोग्लिया। सो न्यूरोग्लिया क्या करता है? न्यूरोग्लिया ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो कि नर्व्स को यानी न्यूरॉन्स को, बेसिकली न्यूरॉन्स को ये सपोर्ट करती हैं, और ये होती कहाँ है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये भी स्पेशल काइंड की सेल्स होती हैं, लेकिन ये डायरेक्टली फंक्शन नहीं करती हैं, जैसे कि इंपल्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने का काम जो न्यूरॉन करता है। लेकिन इनके बिना न्यूरोग्लिया के न्यूरॉन का कोई फंक्शन नहीं हो सकता। तो हमें न्यूरॉन के साथ साथ न्यूरोग्लिया भी जानना है। तो हमारे पास 10 न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। पूरे नर्वस सिस्टम का कंस्टिट्यूएंट पार्ट क्या है? मेजर पार्ट न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन नया कुछ नहीं है इसमें, बट आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाएगा कि अभी तक जो हम +2 तक पढ़ते आए हैं और अब हम जो मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, हमारे चीजों को समझने का तरीका बदलता है। न्यूरॉन स्ट्रक्चर है
आप देख सकते हैं इसमें, और आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वही स्ट्रक्चर सामने है, बट थोड़ा सा चेंज क्या है, इसमें एक सेल बॉडी है जिसको हम सोमा या प्रोकैरियोन कहते हैं, हम वो भी जानते थे। इस सेल बॉडी के भीतर हमने अभी तक ये नहीं देखा था कि क्या क्या होता है। तो इस सेल बॉडी या न्यूरॉन की जो सोमा है, जिसको हम पेरिकैरियोन कहते हैं, उस सेल बॉडी के भीतर वो सारे लगभग स्ट्रक्चर होते हैं जो एक रेगुलर यूकैरियोटिक सेल्स के भीतर होते हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स। यानी एक हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके भीतर जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स, कॉमन स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। साथ ही साथ इनमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर क्या आता है, निसल्स ग्रेन्यूल्स आते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स ये एक स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि जो इंपल्सेस हैं, उन इंपल्सेस के बेस पर जो तरंगे उठती हैं, उन तरंगों का पीक बनाती हैं। पीक बनाने से क्या फायदा होता है, जो तरंगे, जो वेव आप देखते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि एक वेव जो होती है उसके कुछ एम्पलीट्यूड होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ा है वेव्स का, +2 में आपने फिजिक्स में। तो जो ये आप वेव का एक पिक्चर बनाते हैं, जो ये वेव का टॉप एंड, पूरी एक लकीर आप खींचते हैं, उस लकीर का जो टॉप पॉइंट है, वहां पर जाकर ये निसल्स ग्रेन्यूल्स टच करते हैं उस इंपल्स के, और टच करने की वजह से, इन्हीं ग्रेन्यूल्स की वजह से जो भी चेंजेस हैं, जो इंपल्स आ रहा है वो इंपल्स आगे प्रोपगेट होता है। हमारे पास एक सेल बॉडी हो गई। दूसरा हमारे पास हम देखते आए हैं कि कई सारे इस सेल बॉडी के चारों तरफ कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ जिनको हम कहते हैं, और न्यूरॉन्स के बेस पे इनका नाम अलग से आता है, न्यूराइड्स कहते हैं। तो ये न्यूराइड्स जो हैं हमारे पास, ये भी हम जानते आए हैं कि 2 तरह के होते हैं हमारे न्यूराइड्स, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स क्या हैं, शॉर्ट ब्रांच हैं, और एक्सॉन क्या है, जो एक ऐसी ब्रांच जो सबसे लॉन्गर होगी, सबसे लॉन्गर ब्रांच जो होगी हम उसको एक्सॉन कहते हैं। और कई सारे छोटे छोटे उस सेल बॉडी के चारों तरफ प्रोसेसेस होते हैं जिनको कि हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। फिर हम डिटेल में जरा देखते हैं कि डेंड्राइट्स हैं क्या एक्चुअल में। डेंड्राइट्स शॉर्ट ब्रांचेस ऑफ प्रोसेस, अभी हमने बात की आपसे, होती कहां पर है, टर्मिनेट्स नियर द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी यानी सोमा जो है, जो पेरिकैरियोन था, उस पेरिकैरियोन के आसपास ही ये छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, और उनका रूट जो होता है वो सेल बॉडी में आकर टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इनकी थिकनेस वेरिएबल होती है, रेगुलर थिकनेस नहीं होती। यानी जो ये प्रोसेसेस या जो ये थॉर्न लाइक प्रोसेसेस निकले हुए हैं, इन प्रोसेसेस की थिकनेस अलग अलग हो सकती है। एक यूनिफॉर्म थिकनेस सभी डेंड्राइट्स की नहीं होगी, और डेंड्राइट्स में किसी किसी डेंड्राइट्स में निसल ग्रेन्यूल्स होंगे, किसी में निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। BS न्यूमेरस स्मॉल स्पाइन्स ऑफ द वेरियस शेप। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि जो ये एक प्रोसेस है सोमा से, बॉडी से, जो सेल बॉडी है उससे चारों तरफ कई सारे प्रोसेस निकले हुए हैं। उन प्रोसेसेस के अलावा उन प्रोसेस में कई सारी ब्रांचिंग जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और ब्रांचिंग भी ऐसा लगता है जैसे थॉर्न है, यानी कांटे हैं, स्पाइन्स हैं। वो प्रोसेस, ये स्पेशल फीचर है किसका, डेंड्राइट्स का। एक्सॉन में ये स्पाइन्स नहीं होते हैं, केवल और केवल डेंड्राइट्स में ही ये छोटे छोटे स्मॉल स्पाइन्स मिलते हैं। ये स्मॉल स्पाइन्स इसलिए होते हैं ताकि अदर दूसरे सेल्स के साथ जब ये कांटेक्ट करते हैं तो ये जो छोटे छोटे स्पाइन्स हैं उस सेल के मेम्ब्रेन के साथ टच करते हैं, और वहां से ये अपना परसेप्शन रिसीव करते हैं। कन्वेज द नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, मींस जो भी परसेप्शन इन्होंने रिसीव किया उसको वो सेल बॉडी की तरफ, सोमा की तरफ ले आते हैं। तो जो सोमा की तरफ ले आने वाले प्रोसेसेस हैं जिनको कि हम डेंड्राइट्स कह रहे हैं, वो छोटी ब्रांचेस हैं और छोटे छोटे ये प्रोसेस हैं, और ऐसे प्रोसेस हैं जिनके ऊपर कई सारे छोटे छोटे स्मॉल स्पाइन्स निकले होते हैं। एक्सॉन्स, लॉन्गेस्ट प्रोसेस, एक ही प्रोसेस होगा, जनरली एक ही होता है, लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है, एक्सटेंड्स अप टू अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, कुछ
एक कंसिडरेबल डिस्टेंस, यहाँ वर्ड्स लिखा हुआ है बट आपको सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो जो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन एक डेफिनेट कुछ लंबाई तक फैले होते हैं, यूनिफॉर्म डायमीटर होता है इनका, और इनके भीतर निजल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो अब सबसे एक आश्चर्य की बात आपके लिए ये है कि आश्चर्य की बात यह है कि अभी हमने आपसे बात की थी कि नर्व, तो जो आप नर्व फील करते हैं अपने डिसेक्शन हॉल में उस कैडेवर के भीतर, वो अभी हमने बताया आपको कि वो बंडल ऑफ फाइबर्स हैं। तो जो बंडल ऑफ फाइबर्स के भीतर जो फाइबर है, वो फाइबर एक्चुअल में ये एक्सॉन है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि एक नर्व चाहे छोटी हो या बड़ी, काफी एक डिस्टेंस तक फैली होती है, एक डिस्टेंस कवर करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के आप टिप तक, टिप ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द मिडिल फिंगर आपकी जाएगी, जो मीडियन नर्व है। तो आप उसको कंसीडर करिए कि जो ये मिडिल फिंगर, यानी आपके जो मिडिल फिंगर के टिप तक मीडियन नर्व की प्रोसेस जा रही है, वो नर्व जिसको आप कह रहे हैं, वो नर्व एक्चुअल में एक एक्सॉन है, और उसकी सेल बॉडी कहाँ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। तो काफी लंबी हुई। सो इट इज मेंशन्ड हियर एज एक्सटेंड्स अप टू अ कंसीडरेबल डिस्टेंस। ये एक्सॉन्स काफी लंबे डिस्टेंस कवर करते हैं। यूनिफॉर्म इन डायमीटर, डिवाइड ऑफ nasal granules, conveys the nerve impulses away from the cell body. अभी तक जो इंपल्सेस आ रहे थे वो हमारे सेल बॉडी में वो डेंड्राइट्स के थ्रू आ रहे थे, लेकिन जो इंपल्सेस यानी जो ऑर्डर में मिलता है वो ऑर्डर जाता किसके थ्रू है? एक्सॉन्स के थ्रू। स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एन एक्सॉन adjacent to the soma is called axon hilux. एक्सॉन हाइलक्स आप देख सकते हैं कि एक सेल बॉडी है पिक्चर में, और उसके चारों तरफ कई सारे प्रोसेसेस हैं, कई सारे प्रोसेस से सभी में से सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस ढूंढा, और लॉन्गेस्ट प्रोसेस वो को नाम दिया हमने एक्सॉन। सो ये लॉन्गेस्ट प्रोसेस जहां से सेल बॉडी से ये ओपन होता है या स्टार्ट होता है, वहां पर एक छोटा सा नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सॉन हाइलॉक। कन्वेज कवर्ड बाय अ शीथ, जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। आपके लिए माइलिन शीथ तो आप वर्ड सुनते आए हैं, बट आपने एक वर्ड नया यहां आपको सुनने को मिलेगा माइलिन शीथ के अलावा। हम ये जानते रहे कि जो माइलिन शीथ है वो स्वान सेल से बनी होती है, यही हम अब तक पढ़ते आए हैं +2 तक। लेकिन यहां पर आपको एक और सेल मिलेगी जिससे ये माइलिन शीथ होती है, वो है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स स्वान सेल्स ही नहीं होती हैं, बल्कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स भी होती हैं। तो स्वान सेल्स के कवर्ड जो एक्सॉन है, यानी एक न्यूरॉन का एक्सॉन जिसके ऊपर एक माइलिन शीथ है, वो माइलिन शीथ अगर स्वान सेल से बनी है तो कंफर्म है कि ये एक्सॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। और अगर वही एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग है माइलिन शीथ की, वो कवरिंग अगर ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स की सेल से बनी है, मींस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर वो एक्सॉन है। तो आपके लिए ये दो चीजें कंफ्यूज कर रही हैं आपको। कंफ्यूज कैसे कर रही हैं? सर कह रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन्स है, वो मैसेज ले जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के अदर पार्ट्स तक, और दूसरी तरफ सर ये कह रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी एक माइलिन शीथ से एक्सॉन होता है। बिल्कुल होता है। हमने अभी आपको ये कहा कि जो आप नर्व देख रहे हैं पेरिफेरल सिस्टम में, वो एक एक्सॉन है, डेफिनेटली वो एक एक्सॉन है, और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये आप कंफर्म होइए। और इसके ऊपर जो माइलिन शीथ है वो श्वान सेल की बनी है। लेकिन आप अभी तक ये नहीं जानते हैं कि जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है उसमें कई लेवल पे ये पूरा न्यूरॉन्स जुड़ा होता है, कई लेवल पे। एक न्यूरॉन, जैसे मान लेते हैं अगर आप बात करें मीडियन नर्व की बात करें, तो मीडियन नर्व जो कि हमारे मिडिल फिंगर के टिप से स्टार्ट होकर कलेक्शन हो, एक फाइबर निकलता है और वो जाता कहां है? आपके ब्रैकियल प्लेक्सस में। ब्रैकियल प्लेक्सस में यानी आपके रूट में, आप C4 से लेके T1 तक का ब्रैकियल प्लेक्सस का रूट देखिए, और मीडियन नर्व सभी में है, उन सभी का ये रूट वैल्यू है मीडियन नर्व का, ये सारे हैं। तो यहां तक एक एक्सॉन जाता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो मैसेज है वो मैसेज का डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड लेती हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
ब्रेन भी ले सकता है डिसीजन। तो वो ब्रेन का डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे पहुंचेगा, वहां पर एक और एक्सॉन होता है, एक और न्यूरॉन है जिसका लंबा सा एक्सॉन है, और वो एक्सॉन सेंट्रल यानी ब्रेन से स्टार्ट होकर उस ब्रैकियल प्लेक्सस की स्टार्टिंग वाले रूट वैल्यू जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं, स्पाइनल नर्व का सेगमेंट जो है वहां तक आता है। तो अब आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारे पास एक्सॉन यानी न्यूरॉन की हम बात कर रहे थे, जिसपे दो तरह की अलग अलग शीथ हमने आपको बताई, वो एक्चुअल में शीथ क्यों है, क्योंकि हमारे पास कई लेवल पर एक्सॉन्स हैं। एक एक्सॉन बॉडी के बाकी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है मैसेज या ले आता है मैसेज, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक ले जाता है। और कुछ ऐसे भी स्टेप्स होते हैं जिसमें कि ब्रेन में भी एक पार्ट का ऑफ द ब्रेन से वो मैसेज दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेन तक को जाना चाहिए, तब जाकर डिसीजन होता है। तो जो ये एक्सॉन्स या न्यूरॉन्स का ये स्टेप है, अब अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर रन कर रहा है तो उसके ऊपर जो कवरिंग है माइलिन शीथ की, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनी होगी। और अगर वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यानी लिम्ब्स में है, ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है, तो उस एक्सॉन के ऊपर जो शीथ है वो माइलिन शीथ होगी, जो कि स्वान सेल से बनी होगी। हम आते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओवर द माइलिन शीथ एन एडिशनल शीथ इज प्रेजेंट ऑन आउटर साइड कॉल्ड न्यूरोलिमा। इस माइलिन शीथ के ऊपर भी एक शीथ है, एक शीथ और होती है मेम्ब्रेन, जिसको न्यूरोलिमा कहते हैं। ये न्यूरोलिमा क्यों और इतने सारे शीथ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इतने सारे शीथ इसलिए बनाए जाते हैं, आप गौर करेंगे, हो सकता है कि आपके किसी न किसी गांव या शहर में जो बिजली के पोल होते थे, वो बड़े बड़े पोल होते थे और उनपे बिल्कुल नेकेड वायर घूमता था, मोटे मोटे वायर। उनसे लॉस क्या होता था? अब आप देखते हैं कि अंडरग्राउंड केबल पड़ती है, और ऐसी केबल जिसके ऊपर कई सारे इंसुलेटेड प्लास्टिक लगे होते हैं, और वो अंडरग्राउंड केबल बनती है। क्यों इसका करना पड़ा? क्योंकि जो वायर ऊपर ओपन एयर में चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी लेकर जाता था, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारा पावर लॉस होता था। तो इसी न्यूरॉन्स के, जो ये आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसी नर्वस सिस्टम से इंस्पायर्ड होके बाकी सारे इंजीनियरिंग के पार्ट भी जब इनको देखते हैं तो उनका यूज करते हैं। तो उसी तरह से अब अंडरग्राउंड केबल्स बिछाई जाती हैं। आपने फिजिक्स की ऑप्टिक्स में भी पढ़ा होगा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन आपने ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है। कुछ एंगल होता है जिसके बेस पर कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है, और उस कंप्लीट रिफ्लेक्शन का यूज ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने में करते हैं। ऐसे फाइबर्स जिनके भीतर वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है और मैसेज बहुत तेजी के साथ लाइट की स्पीड, क्यों? क्योंकि वो भी एक शीथ के भीतर बंद होता है। तो यहां पर एक जो मैसेज है, वो मैसेज इंपल्सेस के रूप में है। वो इंपल्सेस टिके ना हो, कम घटे, नुकसान कम हो, उसलिए उसके ऊपर श्वान सेल्स या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की एक कवरिंग है, और उसके भी ऊपर एक न्यूरोलेमा की कवरिंग है। काफी कवर्ड करके रखते हैं। एक्सॉन्स हैविंग माइलिन शीथ और कॉल्ड माइलिनेटेड एक्सॉन्स। यानी अभी भी अब आप देखिए कि हमारे पास एक्सॉन्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए दो पार्ट हो जाएंगी थोड़ी देर। एक्सॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ है उनको हम माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहते हैं, और जिनके ऊपर माइलिन शीथ होती ही नहीं है उनको हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स के नाम से जानते हैं। तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स अलग अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट में और नर्वस सिस्टम के अलग अलग एरिया में होते हैं। जहां जरूरत होती माइलिनेटेड की, वहां माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। जहां माइलिनेशन की आवश्यकता नहीं होती, वहां माइलिनेशन नहीं होता है। This myelination increases the velocity of the conduction and reduces the energy expenses. Short gap in sheath is called the power nodes of the Ranvier. इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये +2 लेवल का है। आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं इसके बारे में कि नोड्स ऑफ Ranvier क्या है। नोड्स ऑफ Ranvier जो कि सॉल्टेटरी, जो ये स्वान सेल्स की शीथ बनी है, माइलिन शीथ, उनके बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं, उन हम कहते हैं नोड्स ऑफ Ranvier। वो गैप क्यों होते हैं वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, उनकी जरूरत क्यों है गैप की। एक्सॉन्स में गिव अ नंबर ऑफ द ब्रांचेस। एक्सॉन्स भी ब्रांचेस दे सकते हैं, लेकिन ध्यान देना आप कि जो सेल बॉडी से प्रोसेसेस निकले हैं, डेंड्राइट्स जिनको हम कह रहे थे, उन्हीं में से एक लॉन्गेस्ट है, उसको हम एक्सॉन कह रहे हैं। और एक्सॉन भी ब्रांच्ड हो सकते हैं।
Branches near the cell body is the called collateral, and branches near terminal are called telodendrita. यानी एक एक्सॉन जैसे ही सेल बॉडी से निकलता है, बाहर जाता है अपनी डिस्टेंस तय करने के लिए, वहां पर भी वो स्टार्टिंग में ब्रांच दे सकता है। तो स्टार्टिंग में अगर ये ब्रांच देता है तो उसको हम कहते हैं कोलेटरल ब्रांचेस, और अगर वो बिल्कुल अपने लास्ट पॉइंट पर जाकर ब्रांच्ड होता है, उस लास्ट पॉइंट की ब्रांचेस को हम टीलोडेंड्रिया कहते हैं। जो लास्ट पॉइंट की टीलोडेंड्रिया यानी जो लास्ट पार्ट की ब्रांचेस हैं, वहां पर जो ब्रांचेस बनती हैं, उन ब्रांचेस का जो एंड होता है, टर्मिनल एंड यानी लास्ट पॉइंट, जैसे आप अपनी फिंगर को, अपने हैंड की फिंगर को, चारी पांचों फिंगर्स को आप फैला लीजिए, तो फैलाने के बाद आप फिंगर की टिप देखिए, तो जो टिप है उस टिप पर स्ट्रक्चर यहाँ टर्मिनल एक्सॉन्स पे होते हैं। आपकी फिंगर पे बटन लगा लीजिए तो बिल्कुल वैसा ही पिक्चर देगा एक्सॉन्स का। तो यहां पर जो टीलोडेंड्रिया है, जो टर्मिनल एंड पर ब्रांचेस बनती हैं, उनके ऊपर कुछ टर्मिनल बटन्स होते हैं। बटन्स का फंक्शन आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि क्या है। न्यूरॉन्स की वैरायटी, हम कई सारी वैरायटीज जानते हैं और ये हम +2 से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिपोलर, सिंगल प्रोसेस सून डिवाइड्स इनटू द टू, यानी एक ही पोलर सिंगल ब्रांच निकलती है, लॉन्गेस्ट ब्रांच सिंगल ब्रांच निकलती है और वही आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक फंक्शन करती है एज ए डेंड्राइट्स, दूसरी फंक्शन करती है एज ए एक्सॉन। उसको यूनिपोलर सेल्स न्यूरॉन्स कहते हैं। बाइपोलर, जिसमें एक डेंड्राइट्स एक एंड से सेल से निकलता है और दूसरे एंड से एक एक्सॉन निकलता है। मल्टीपोलर, एक एक्सॉन यानी लॉन्गेस्ट ब्रांच उसमें एक ही है, कई सारे शॉर्ट प्रोसेसेस हैं जो कि डेंड्राइट्स कहलाते हैं। तो हमारी बॉडी में यूनिपोलर की संख्या बहुत कम है, ज्यादा संख्या किसकी है? मल्टीपोलर और बाइपोलर्स की। अकॉर्डिंग टू द शेप, ये वैरायटी ऑफ द न्यूरॉन्स है। अकॉर्डिंग टू देयर शेप, स्टिलेट और द पिरामिडल, यानी इनके शेप के हिसाब से भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि इनका स्टिलेट शेप है या पिरामिडल शेप है। स्टिलेट शेप मींस कहने का स्टार लाइक शेप, स्टिलेट स्टार लाइक शेप, जैसे आप स्टार बनाते हैं पिक्चर में, स्टार जो ओरिजिनल होता है वो नहीं, जो आप अपने कागज पर स्टार का शेप बनाते हैं, अपने बर्थडे में आप स्टार का शेप टांगते हैं, उस तरह का शेप स्टिलेट शेप। और पिरामिडल शेप, पिरामिड के शेप का। अब हम बात करते हैं न्यूरोग्लिया की। न्यूरोग्लिया क्या है? सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स, अभी हमने बात की थी। इसके कई सारे वेराइटीज हैं। कौन कौन सी वेराइटीज हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के भीतर प्रेजेंट हैं, उसमें से कौन कौन से हैं? एक होती एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द सिस्टम। आपने अभी तक अगर अपनी क्लास कॉलेज में, मुझे नहीं लगता कि नर्वस सिस्टम अभी आपका स्टार्ट हुआ होगा, पर फिर भी अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप वेंट्रिकल वर्ड तो कम से कम आपने हार्ट में तो पढ़ ही लिया है, सीवीएस में। वेंट्रिकल यानी एक कैविटी। तो हार्ट में जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, वैसे ही ब्रेन में भी कई सारे वेंट्रिकल्स हैं, जिनमें से कि 2 लैटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। छोटे छोटे स्पेसेस हैं, कैविटी हैं। ब्रेन एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसके भीतर छोटी छोटी 4 कैविटीज हैं। इन कैविटीज को वेंट्रिकल कहते हैं। उन कैविटीज के अंदर, यानी कोई भी कैविटी है, जैसे कि आप एक बर्तन लेते हैं, बर्तन के भीतर के लेयर को अगर आप हाथ से टच करिए, वैसे ही जो कैविटी है जिसको वेंट्रिकल आप कह रहे हैं, उस कैविटी की लाइनिंग बनाता है जो सेल, वो न्यूरोग्लियल सेल्स एपेंडाइमल टाइप की सेल्स हैं, उनको एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। स्वान सेल्स फॉर्म्स द सीथ ऑफ द एक्सॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अभी हमने बात की। कैप्सुलर सेल्स सराउंड्स द न्यूरॉन्स इन द पेरिफेरल गैंग्लिया। पेरिफेरल गैंग्लिया को चारों तरफ से जो सराउंड करती हैं उनको कैप्सुलर सेल्स कहते हैं, वो भी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि गैंग्लिया है क्या एक्चुअल में। इनका क्लासिफिकेशन क्या करते हैं हम न्यूरोग्लिया का? 2 तरह की कैटेगरी, शेप के हिसाब से, ज्यादा नहीं करते हैं हम, छोटी हैं या बड़ी हैं, सिर्फ इतना ही। माइक्रोग्लिया है या माइक्रोग्लियल सेल्स हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स यानी लार्ज ग्लियल सेल्स हैं, उनके 2 टाइप्स हो जाते हैं, एस्ट्रोसाइट्स
यहाँ भी ये स्टार शेप्ड होती हैं, और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जिनका शेप क्या होता है पीयर शेप्ड होता है, और छोटे छोटे कई सारे अलग अलग शेप की माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं। तो हम सिर्फ साइज के बेस पर जो बड़ी हैं उनको मैक्रोग्लियल, और उसमें से हमारे पास दो ही हैं बड़ी बड़ी सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। बाकी जो छोटी छोटी हैं उनमें कई सारी आती हैं, उन सभी को मिला के हम माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन क्या है, इनकी जरूरत क्यों है? ये मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे करती हैं? अभी आपने देखा कि शीथ बनाती हैं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट है, और सर्व्स एज द इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह से काम करती हैं। साथ ही साथ एक बहुत मेजर रोल ये प्ले करती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में। ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर आप कई बार सुनते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर है क्या? ब्लड ब्रेन बैरियर आपके ब्लड, जो आपके ब्रेन है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फंक्शन करने के लिए ब्लड चाहिए, और उस ब्लड में से कई सारे न्यूट्रिशंस हैं और ऑक्सीजन है। लेकिन आप जानते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो भी ब्लड के थ्रू रन करते हैं बॉडी में। ऐसा नहीं है कि एक हाथ का इन्फेक्शन जो है वो गले तक कैसे पहुंच सकता है या पेट तक कैसे पहुंच सकता है अगर हाथ में चोट लग गई, वो जाता ही ब्लड के थ्रू है। तो जब ब्लड के थ्रू जाता है तो बॉडी के और पार्ट में अगर पहुंच सकता है कोई इन्फेक्शन, तो ब्रेन में भी पहुंच सकता है। सो ब्रेन में वो इन्फेक्शन किसी तरीके से नर्वस सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए, उनकी टच में ना आए, उनके कांटेक्ट में ना आए, वो जो सिस्टम काम करता है उसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड है ब्रेन में जाने वाला, उसको लिए वो बैरियर का काम करता है कि नहीं भाई, सिर्फ न्यूट्रिशंस आएगा और ऑक्सीजन आएगी, बाकी और कोई नहीं आएगा अंदर। तो वो जो काम करता है वो न्यूरोग्लियल सेल्स करती हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स का काम सिर्फ मैसेज को ले जाना और ले आना है, जो प्रोसेसेस हैं, लेकिन ये न्यूरोग्लियल सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती हैं। सो मेन फंक्शन अगर आपको कहा जाए, कोई भी पूछे आपसे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, सॉरी न्यूरोग्लिया, सो यू कैन रिप्लाई इट फंक्शंस एज ब्लड ब्रेन बैरियर as well as it supports to the neurons and forms a insulator sheath. एस्ट्रोसाइट्स की बात करते हैं। These are एस्ट्रोसाइट्स हैं क्या? न्यूरोग्लियल सेल्स की ही बात है ये। These encircle the vessels that make up the blood brain barrier. तो अभी हमने ब्लड ब्रेन बैरियर की बात की, वो ब्लड ब्रेन बैरियर एक्चुअल में न्यूरोग्लियल सेल से बनता है, और वो न्यूरोग्लियल सेल्स एस्ट्रोसाइट्स हैं, which helps in to prevent the undesirable substances from entering the brain via blood vessels. मैं आपको इसके पहले ही इसको बता चुका हूं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं कुछ जरूरत है बताने की। बस आप शेप देख सकते हैं, स्टार शेप्ड होती हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनती है, वो माइलिन शीथ ऑलिगोडेंड्रोसाइट से बनती है, और अगर वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनती है तो वो श्वान सेल से बनती है। Microglia, smallest of all neuroglial cells. These cells mediate immune responses in the central nervous system. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्यून रिस्पॉन्स है, उसके लिए ये छोटी छोटी जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक्चुअल में जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो इम्यूनो रिस्पॉन्सिव सेल्स होती हैं, फिजियोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं, वही सेल्स होती हैं। देखने में बिल्कुल वैसा ही शेप होता है, फंक्शन भी सेम होता है, बट दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्मल ओरिजिन। एक्टोडर्मल से होती हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन नहीं होती इनकी माइक्रोग्लिया की, क्योंकि आप जानते हैं नर्वस सिस्टम इज ए एक्टोडर्मल ओरिजिन। कैसे काम करती? एक्टिंग एज ए माइक्रोफेजेस, जैसे बॉडी में अदर जगहों पे माइक्रोफेजेस काम करते हैं, वैसे ही ये माइक्रोग्लियल सेल्स काम करती हैं, क्लियरिंग सेलुलर डेब्रीज एंड डेड न्यूरॉन्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। एक कॉमन जो प्रोसेस आप सभी जानते हैं,
फैगोसाइटोसिस के जरिए ये बाकी जो डेड सेल्स हैं उन सबको रिमूव करती हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन आ गया जो बाहर से पहुंचने वाला है उनको भी वो डिसॉल्व कर देती हैं। इपेंडाइमल सेल्स फॉर्म्स द एपिथेलियल लाइन। अभी मैंने बात की आपसे कि ये वेंट्रिकल की इनर लाइनिंग बनाती हैं, जो वेंट्रिकल्स हैं, कैविटीज हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द ग्रे मैटर एंड व्हाट इज व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है, बहुत सुनते आ रहे हैं हम। एक्चुअल में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहने के पीछे जो बेसिक कॉज है वो यही है कि इनका कलर वैसा होता है। ये देखने में व्हाइट लगती हैं और एक देखने में ग्रे कलर की लगती है। सो हम वी कॉल these are the gray matter, these are the white matter, only on the basis of their color. लेकिन ये किसके लिए है डेफिनेशन? ये एक +2 के स्टूडेंट के लिए हो सकती है, बट ए मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर। आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? कलर। लेकिन है क्या एक्चुअल में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर? दीज आर द कंडेंस्ड मासेस ऑफ द नर्वस टिश्यू। ध्यान देना, आप यहाँ वर्ड लिखा है नर्वस टिश्यूज, ना तो आपको न्यूरॉन लिखा है ना ही न्यूरोग्लियल सेल्स लिखा है, यहाँ ये नर्वस टिश्यूज लिखा है। तो ये कंडेंस्ड मासेस हैं नर्वस टिश्यूज के, किसी के भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये हैं क्या। एरियाज हैविंग अनमाइलिनेटेड फाइबर्स आर टर्म्ड एज द ग्रे मैटर एंड एरियाज हैविंग माइलिनेटेड फाइबर्स आर नेम्ड एज व्हाइट मैटर। तो अब आपकी समझ में, वैसे तो +2 से भी आप सुन चुके हैं कि जो माइलिनेटेड होती हैं वो व्हाइट दिखते हैं, जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं वो व्हाइट नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसे नेक्सॉन्स या ऐसे फाइबर्स का एरिया जो कि माइलिनेटेड है वो व्हाइट दिखता है। क्यों? क्योंकि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं, वो व्हाइट शेप कलर देती हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड हैं या अनमाइलिनेटेड हैं वो ग्रे कलर में शो होते हैं। तो जो ये ग्रे मैटर है वो अनमाइलिनेटेड फाइबर से बना हुआ एरिया है, वहां पर जो फाइबर्स हैं वो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं, और जहां व्हाइट कलर है जिसको आप व्हाइट मैटर बोल रहे हैं वहां पर जो फाइबर्स हैं वो एक्चुअल में माइलिनेटेड फाइबर्स। दूसरा एक टर्म आता है, मैं आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा क्योंकि बेसिक में आपको टर्मिनोलॉजीज ही आएंगी, क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। न्यूक्लियाई बहुत सुनते आ रहे हैं, न्यूक्लियाई वो सेल का न्यूक्लियाई नहीं जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं, यहां न्यूक्लियाई एक अलग वर्ड है। न्यूक्लियाई क्या है? आइसोलेटेड मासेस ऑफ द ग्रे मैटर present anywhere in the central nervous system, especially in white matter, are called the nuclei. Plural is nucleus है। वापस हम आते हैं, सिंपल वर्ड में समझते हैं। हम आप ब्रेन का स्ट्रक्चर खूब सारा देखते आ रहे हैं उसमें, और यह सामने भी आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ एरिया पेरिफेरल में ग्रे कलर का है और बीच बीच में व्हाइट, या नहीं है यहाँ व्हाइट क्योंकि पिंकिश दिख रहा है आपको, बट इसी को हम व्हाइट कहते हैं, व्हाइट मैटर। सो जो व्हाइट मैटर है या ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर तो पेरिफेरल में अरेंज्ड है, लेकिन व्हाइट मैटर के भीतर अगर कोई ग्रे मैटर का छोटा छोटा पैचेस या आइलैंड दिखाई देता आपको, छोटा या बड़ा किसी भी शेप का हो सकता है, वो एक्चुअल में उस ग्रे मैटर के आइलैंड या पैच को न्यूक्लियाई कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन्हीं दो जगहों पर, इन्हीं दो जगहों पर अगर है तो हम उसको कहेंगे न्यूक्लियाई। और एक्चुअल में है क्या ये जो ग्रे मैटर की न्यूक्लियाई ग्रे कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में दीज आर द सेल बॉडी। जो नर्व्स न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स का ये सेल बॉडी है, सोमा है। ये जो ग्रे कलर के दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो अनमाइलिनेटेड फाइबर भी हो सकते हैं, बट जनरली जो न्यूक्लियस जिनको हम कहते हैं वो सेल बॉडी में न्यूरॉन्स में, क्योंकि सेल बॉडीज के ऊपर स्वान सेल या ओलिगोडेंड्रोसाइट की कवरिंग नहीं है, इसलिए वो व्हाइट नहीं दिखेंगी, इसलिए वो ग्रे कलर का शेप देती है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के भीतर जो छोटे छोटे पैचेस अदर देन पेरिफेरी,
क्योंकि पेरिफेरी पर तो ग्रे कलर है, उसको हम ग्रे मैटर के नाम से जान रहे हैं, लेकिन अगर व्हाइट मैटर के भीतर छोटे छोटे पैचेस जो ग्रे कलर के दिखते हैं उनको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। और वो एक्चुअल में क्या है, सेल बॉडीज हैं हर एक न्यूरॉन की, लेकिन एक सिंगल न्यूरॉन की सेल बॉडी नहीं है उतना कलर देगी आपको। सो एग्रीगेटेड मासेस हैं, एग्रीगेटेड मासेस। तो एग्रीगेटेड मासेस हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया इज एक्चुअली एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडीज। जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज एग्रीगेशन है ये। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आ जाती है, जो वो कंडीशन वहां है कि वो क्या कहती है, जो न्यूक्लियाई के लिए वो कह रही है कि सेल बॉडीज हैं किसकी, न्यूरॉन्स की, लेकिन कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। लेकिन अगर वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बाहर हैं जो सेल बॉडीज एक न्यूरॉन्स की, उन सभी कलेक्टेड, वो एग्रीगेटेड एक ही जगह पर कई सारी होंगी, उन एग्रीगेटेड सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स को जो कि आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उनको हम गैंग्लिया कहते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आया? बेसिक डिफरेंस यही है, दोनों सेल बॉडीज हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है, एक सेल बॉडीज का जो कलेक्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर है, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के भीतर है, हम उसको न्यूक्लियाई कहेंगे। अगर वही ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के भीतर नहीं है तो हम उसको गैंग्लिया कहेंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ उनकी लोकेशन पर डिफर है। ब्रेन के भीतर है तो न्यूक्लियाई, ब्रेन से बाहर है तो गैंग्लिया। फंक्शन भी सेम है, कोई भी अलग फंक्शन नहीं। अब बात करते हैं ट्रैक्ट की। ट्रैक्ट क्या है एक्चुअल में? ट्रैक्ट नाम से ही आपको पता है, आप बहुत कॉमनली जानते हैं, नहीं कुछ तो ट्रैक्ट नहीं जानते तो ट्रैक वर्ड तो आप जानते ही हैं। ट्रैक, व्हाट इज द ट्रैक? उसी ट्रैक का ये एक्चुअल वर्ड है ट्रैक्ट, यानी रास्ता। पर ट्रैक्ट एक ऐसा रास्ता जिसमें कई सारे बड़े बड़े, यानी ये यूं कह सकते हैं एक हाईवे है ट्रैक्ट। उसमें 2 लेन भी हो सकती है, 4 लेन भी हो सकती है, 8 लेन भी हो सकती है। तो ट्रैक्ट क्या है? स्मॉल एग्रीगेटेड एक्सॉन्स, छोटे छोटे एक्सॉन्स का कलेक्शन, एग्रीगेटेड है, कनेक्टिंग 2 और द मोर मासेस, 2 या 2 से अधिक मासेस ऑफ द ग्रे मैटर इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनको कनेक्ट करता है। फिर से हम सुनते हैं इसको जरा ध्यान से। एक्सॉन्स का काम क्या था? मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना। लेकिन हमने आपको यह कहा था कि हर एक्सॉन के ऊपर 2 तरह की कवरिंग है, जिसमें एक स्वान है और एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। तो जो स्वान थी वो पेरिफेरल पार्ट में थी, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के वाले एक्सॉन्स थे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर थे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर जब ये एक्सॉन्स रन करते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक दूसरा एक्सॉन जा रहा है, अगर वो दूसरा एक्सॉन ये अपने साथ कई सारे पैरेलल एक्सॉन्स लेकर साथ चलता है। सिंगल एक्सॉन तो कुछ काम ज्यादा कर नहीं पाएगा, इसलिए बंडल ऑफ एक्सॉन्स चलते हैं। उस बंडल में अगर थोड़े हैं, मींस अगर आप सिंपल वर्ड में हम समझें, मान लीजिए 10 फाइबर्स हैं, आप जाते हैं तार खरीदने, एक वायर आप खरीदने जाते हैं, तो वायर को आप देखते हैं उसके भीतर कितने फाइबर्स हैं। तो क्या करते हैं आप, कितना ज्यादा लोड देना है हमें, जितना ज्यादा लोड देना होगा उतना ही मोटा हम वायर लेते हैं, और उसके भीतर उतने ही ज्यादा फाइबर्स होते हैं। तो जब ये वायर, ये भी वायर है, बस फर्क क्या है, कितना लोड देना है। तो ये ट्रैक्ट जो है लोड के हिसाब से, यानी नंबर ऑफ एक्सॉन्स के जो फाइबर्स हैं उनकी संख्या के बेस पर इनके अलग अलग नाम हैं। सो स्मॉल एग्रीगेटेड एक्सॉन्स, कम संख्या में ऐसे एक्सॉन्स का कलेक्शन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर के एक ग्रे मैटर मास को दूसरे मास से कनेक्ट करता है, यानी एक पार्ट, सिंपल कहें तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता हुआ ऐसा फाइबर जिनके भीतर कम फाइबर्स हैं, उनको कहते हैं ट्रैक्ट्स। अगर यही कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा फाइबर हो, यानी आपने एक बड़ी केबल ली, थोड़ा उससे मोटा वायर लिया, उसको हम फ्यूनिकुली कहेंगे। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ उनके भीतर नंबर ऑफ एक्सॉन्स का है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम उनको नाम से अलग अलग देते हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये
ट्रैक्ट है, ये फ्यूनिकुली है, वो फिजियोलॉजी के बेस पर करते हैं कि एक स्टिमुलस को ब्रेन के कितने पार्ट में जाना है। यानी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, उस आवाज में कई सारे अल्फाबेट्स हैं और हर एक अल्फाबेट को आप कान के थ्रू सुनकर जा रहे हैं। हर एक अल्फाबेट को आप कान से सुन रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, और हियरिंग करने के बाद आपके जो हियरिंग एरिया है वहां तक आपके सिग्नल जा रहा है, लेकिन सिग्नल वहां जाने के बाद वहां वो डिस्पर्स हो रहा है अलग अलग न्यूरॉन्स, जो बॉडीज हैं, सेल्स बॉडीज, उन सभी के साथ अलग अलग जुड़ रहा है। तो हर एक अल्फाबेट के लिए हो सकता है अलग अलग हो न्यूरॉन्स के मासेस। सो सभी को 4 तरह के अल्फाबेट या 4 फंक्शन आप एक साथ परसीव कर रहे हैं, तो उन चारों को कनेक्ट करने के लिए कम वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने फंक्शन ये एक सिंगल स्टिमुलस के लिए ब्रेन तक जो स्टिमुलस परसीव हो रहा है फिजियोलॉजी में, वो कितने एरिया तक जा रहा है, नंबर ऑफ फाइबर्स वहीं से डिसाइड हो जाते हैं। कम एरिया तक यानी 4, 5, 6, 10 तक जाना है, इतने ही फाइबर्स का यूज हो रहा है, तो वो सारे फाइबर्स एक साथ रन कर रहे हैं, उतने को हम ट्रैक्ट कह देते हैं। अगर कई सारे परसेप्शन है, कई सारे एरिया में जाना है, तो हम उनको ज्यादा उसमें फाइबर है, फ्यूनिकुली कहते हैं। और अगर बहुत ज्यादा फंक्शन करना है, बहुत सारे मींस एक मैसेज को एक एरिया से दूसरे एरिया को ले जाना है, और वो जरूरी है सारे फंक्शन एक साथ जाने चाहिए, तो उनको जो कनेक्ट करता हुआ एक्सॉन का फाइबर्स का बंडल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर, उनको कहते हैं फैसिकुली या लेमिनिस्की। तो ये वर्ड्स केवल और केवल छोटे और बड़े नंबर ऑफ फाइबर्स के बेस पर हैं। एक्सॉन्स कम फाइबर्स हैं, ट्रैक्ट है, थोड़ा और फाइबर्स के साथ हैं, फ्यूनिकुली है, बहुत ज्यादा फाइबर्स हैं, लेमिनस्की है। मोर लार्जर एंड मोर फंक्शन, जितने ज्यादा फंक्शन उतने ही ज्यादा मोटा वायर चाहिए आपको। घर के भीतर आप केबल फैलाते हैं, एक कमरे में जितने सारे कनेक्शन होंगे उतने ही ज्यादा वायर आपके पाइप के साथ रन करेंगे। 2 कनेक्शन देंगे, 2 ही वायर रन करेगा। लेकिन अगर आप भीतर कई सारी लाइट लगाना चाहते हैं तो कई सारे वायर आपको रन कराने पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड तो एक ही जगह है। अब आता है एक सबसे लास्ट वर्ड, पिडंकल। ये लार्ज बंडल ऑफ फाइबर्स है, ये सबसे लार्जेस्ट बंडल होता है, लार्जेस्ट बंडल होता है फाइबर्स का, कनेक्टिंग द सेरिब्रल और द सेरिबेलर हेमिस्फीयर टू द ब्रेन स्टेम आर कॉल्ड द पिडंकल। ब्रेन में हम इतना तो जानते आ रहे हैं कि एक सेरिब्रम है जिसके 2 पार्ट हैं हेमिस्फीयर के रूप में, एक सेरिबेलम है और एक ब्रेन स्टेम है जिसमें कि मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेडुला। इतना तो हम +2 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारा ब्रेन का जो पार्ट है, ये भी ब्रेन का पार्ट कोऑर्डिनेशन में काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टिमुलस आपने भेजा या आपने लिखना शुरू किया तो आपने कलम उठाया, मीडियन नर्व स्टिमुलेट करके आपने रेडियल मीडियन जितने भी हैं सारे नर्व का स्टिमुलेशन करके आप कलम उठा के लिखना शुरू कर दिए, तो सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड यानी ब्रैकियल प्लेक्सस से जो नर्व आ रही है केवल वही रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, आपके मन में जो बन रहा है, शब्द जो आप बना रहे हैं, वो शब्द किसी और एरिया में बन रहा है, सोच आप कहीं और रहे हैं और लिखने का काम हाथ कर रहा है। तो ये सारे के सारे एरियाज को एक साथ कनेक्ट करना है। जितनी देर में मैं आपको समझा रहा हूं, इतनी देर में न जाने कितनी बार वो एरिया एक दूसरे के साथ करोड़ों बार कोऑर्डिनेट कर चुके होंगे। तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए चाहे वो सेरिब्रम हो या सेरिबेलम हो, सेरिब्रम है तो उसके दोनों हेमिस्फीयर आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तो कनेक्शन, अगर कोऑर्डिनेशन के लिए कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन के लिए मोटे मोटे वायर चाहिए, वो मोटे मोटे, क्योंकि कई सारे फंक्शन होंगे तो मोटे वायर चाहिए। वो मोटे वायर क्या है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर ये सेरिब्रम या सेरिबेलम का पार्ट है ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट होता है, उन जो फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट होता है उनको हम पिडंकल कहते हैं। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ट्रैक्ट क्या है, फ्यूनिकुली क्या है, फैसिकुली या लेमिनस्की क्या है और पिडंकल्स क्या हैं। ये बड़े बड़े टर्म हैं जो कि आपको कई बार सुनने को मिलेंगे, लेकिन आप इसकी बेसिक चीज अगर नहीं जानेंगे तो वहां आपको ऐसा लगेगा सिर्फ रट लो, ये नाम की चीज है। नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं, आप इसका फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर देखिए, उसके बेस पे उसको डाल आइडेंटिफाई कर लीजिए, और उसके बाद फिर आपको याद रहेगा कि हाँ ये पेडंकल है, मतलब क्या चीज हो सकती है ये। क्लासिफिकेशन,
ये नया नहीं है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल यानी आप जानते हो, हमने बोन्स भी पढ़ते हैं हम, और बोन्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल यानी जो आपके मीडियन प्लेन में जितने भी बोन्स हैं, ठीक वैसे ही मीडियन प्लेन में जो सेंट्रल, जो मेन फंक्शन करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और उसमें आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बाकी बचता है जो बाकी अदर ऑर्गन्स के साथ सिग्नल जाना और आना है, उन सभी का फंक्शन, उन सभी का जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काउंट करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स हैं और गैंग्लिया है। ये गैंग्लिया भी, चूंकि अभी हमने आपको बताया कि जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या हैं और गैंग्लिया क्या हैं, तो गैंग्लिया कहाँ आ रहा है, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसीलिए इट इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम, ये इसके तीन पार्ट हम बेसिकली करते हैं। और फिर हम ब्रेन स्टेम में भी देखते हैं, तो ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ये तीन स्ट्रक्चर्स को कंबाइंडली हम ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। बाकी ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो सेरिब्रम है, और पोस्टीरियर, जो इन्फेरो पोस्टीरियर पार्ट में जो है वो सेरिबेलम है। तो हमारे पास ब्रेन में, अगर आपसे स्टार्टिंग में आपसे सिंपल वर्ड में पूछें कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द ब्रेन, सो यू कैन रिप्लाई दैट देयर इज अ सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड द सेरिबेलम. Again, what is the brain stem? Then you have to say that the midbrain, pons and medulla are collectively called as the brain stem. Peripheral nervous system, पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लिया। पेरिफेरल नर्व्स के भी दो टाइप्स हैं, क्योंकि ये दो जो पेरिफेरल नर्व्स हैं ये कहां से जुड़ी हैं, किसके साथ जुड़ी हुई हैं या कहां से आ रही हैं, उसके बेस पर हम इनको दो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगराइजेशन करके हम उनको पढ़ते हैं। जिनमें से एक क्रेनियल नर्व यानी जो ब्रेन से डायरेक्टली निकल कर आती हैं और बाकी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती हैं, उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स हैं, वो अलग हैं। तो दो हमारे पास, चूंकि ये भी पेरिफेरम में जाती हैं, इसलिए दीज आर द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज द पेरिफेरल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स। अगर कोई नर्व ब्रेन से निकल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ही एंड हो जाए तो हम उसको नर्व नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नर्व नहीं है। वो क्या हो सकता है, वो एक ट्रैक्ट हो सकता है, फेनिकुली हो सकता है, फेसिकुलाई हो सकता है, या पेडंकल हो सकता है, वो नर्व नहीं है। नर्व हमेशा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगी। दूसरा एक पैरेलल सिस्टम चलता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि ये स्वनियंत्रित है, ब्रेन इसको नियंत्रण नहीं करता है। बट अगर देखा जाए तो एक्चुअल में स्वनियंत्रण जैसा कुछ है नहीं, इसमें भी ब्रेन का कहीं ना कहीं रोल आता है, बट और ये ब्रेन को भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम यहां भी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट हैव द टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप सिंपल वर्ड में जानते हैं कि सिंपैथेटिक जानते ही होंगे +2 से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, थोरैकोलंबर सिस्टम दूसरा नाम है उसका। और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं क्रेनियोसैक्रल। मैं आप सभी को, आपके यहाँ था तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था बच्चों को सिंपल वर्ड में, ये बहुत टफ लगता है। व्हाट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, थोरैकोलंबर, क्रेनियोसैक्रल, कंफ्यूजन होता है। तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसको सिंपैथेटिक, यानी सिंपैथी वर्ड है, और सिंपैथी हमेशा कहां से आती है, कहते हैं ना आपके प्रति हमारी सिंपैथी है तो दिल से है, और दिल हमारा कहाँ होता है, थोरैसिक रीजन में होता है। तो सिंपल वर्ड में अगर हम याद करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ थोरैसिक लंबर, जोड़ लो आप। और पैरासिम्पैथेटिक यानी सिंपैथी आपको नहीं देनी है तो वो कहां से आएगी, दिमाग से आएगी। सो दैट इज ए क्रेनियोसैक्रल, क्रेनियम का पार्ट है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। आज के लिए सिर्फ मेरे पास इतने ही हैं बेसिक में। थैंक यू, थैंक यू मैम, ओवर टू यू मैम, सॉरी सर।
Thank you. हाँ जी, thank you. Thank you, sir, for your wonderful presentation. Today, many topics were covered. I think today all the delegates have got enough knowledge about nervous system. So I extend my gratitude to our guest speaker, Dr. Dharmendra Mishra, sir, for taking out his precious time from his busy schedule to grace the event. Thank you, sir, once again. And I would also like to accept my gratitude to all the delegates of the webinar for their presence and contribution. I again thank you to everyone for making this webinar a great success. The next webinar of this series will be held tomorrow at 10 a.m. So I request all the delegates to join the upcoming webinar of this series tomorrow at 10 a.m. Sir, may I ask one question, Mr. Sir? बिल्कुल बिल्कुल You can बिल्कुल ask. Sir, in Pakshagat, which dhatu is supports the nervous system to get paralyzed? in Pakshaghat, which dhatu is influenced? Nervous system to get paralyzed. देखिए इसमें मेरी समझ तो अलग है क्योंकि आप आयुर्वेद को मॉडर्न के साथ मिलाना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा अलग समझता हूँ। वायु जिसको कहते हैं वात दोष है, वायु है, बट एक्चुअल में अगर नर्वस सिस्टम के साथ जो बात करते भी हैं तो नर्वस सिस्टम उसमें कहीं से भी किसी भी नर्व का कोई डिफेक्ट नहीं होता है, स्ट्रक्चरल कुछ भी डिफेक्ट नहीं आता है। जो आता है डिफेक्ट वो उसके फंक्शन में आता है, फंक्शन में। सो नॉट इज इज कॉल्ड द पक्षाघात इज नॉट द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, ये फंक्शनल डिफॉर्मिटी होती है। फंक्शनल डिफॉर्मिटी कैसे होती है? जो मैसेज है या जो इंपल्सेस हैं वो इंपल्सेस प्रॉपरली आते नहीं हैं या जाते नहीं हैं। तो आप धातु अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं धातु नहीं बता पाऊंगा कि ये पक्षाघात जो है वो जिसको पैरालिसिस आप कह रहे हैं वो किस धातु से। धातु तो नहीं, दोष जरूर है आयुर्वेद में जिसको कि आप वात दोष कहते हैं, उससे रिलेटेड है। अच्छा sir, one more question if you don't mind. In अरे essential कोई tremor, बात in essential tremor, ET grade 1, grade 2, in the trouble of making signature, writing, writer's cramps and all this comes. And CNS problem or PNS, peripheral nervous system is cause? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। डिपेंड अपॉन द ब्लॉकेज। जो आप कह रहे हैं कि राइटिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो राइटिंग में प्रॉब्लम देखना ये होगा कि उसकी राइटिंग के वक्त उसका हाथ हिलता है, वो अलग प्रॉब्लम है, या हाथ उसका रुकता है। रुकने का मतलब उसके भीतर जो वो लिखना चाह रहा है उसके लिखने के लिए उसके वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और वो लिख नहीं पा रहा है या फॉर्म ही नहीं हो रहे हैं। सो इसके बेस पर जो आप अभी लिखने की बात कर रहे हैं, तो अगर एनाटॉमी को फिजियोलॉजी के साथ जोड़कर चलें तो हम क्लिनिक में इसके 2 स्टेप करते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। आई थिंक शायद आप यही सुनना चाह रहे हैं। मैं एक्चुअली बेसिक में बच्चों को थोड़ा सा ही सिर्फ बताया मैंने कि एक एक्सॉन कितनी दूर तक जाता है, फिर दूसरा एक्सॉन होता है। तो जो ये एक एक्सॉन पेरिफेरी से स्टार्ट होके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड से दूसरा एक्सॉन रन करता है, दूसरे न्यूरॉन का बंडल है वो रन करता है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। और फिर हो सकता है कहीं कहीं किसी किसी फंक्शन में कि ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए भी तीसरा एक्सॉन होता है। तो इनको फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री जो न्यूरॉन्स कहते हैं वो एक्चुअल में इन कनेक्शंस के बीच जहां पर ये पेरिफेरल से सेंट्रल का पार्ट बनता है, यानी अपने मैसेज को लेकर जो सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज लेकर आ रहा है लिखने की स्टाइल में, यानी आप कह सकते हैं राइटिंग के लिए, हैंड को पकड़ने, ग्रिप पकड़ने के लिए, और दूसरा जो ब्रेन से अपना सिग्नल लेकर स्पाइनल कॉर्ड के उस लेवल तक आ रहा है जहां से कि आप ब्रेकियल प्लेक्सस स्टार्ट हो रही हैं। तो ब्लॉकेज कहां पर है इसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर ये ब्लॉकेज स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन के बीच क्या वहां पर है तो हम कहते हैं ये अपर मोटर न्यूरॉन की प्रॉब्लम है। अगर उसके बाद है, यानी ब्रेकियल प्लेक्सस के बाद से है, वो हाथ लिख नहीं पा रहा है, तो लोअर मोटर। लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए आप उससे कुछ पर्टिकुलर देखते हैं कि वो हाथ कांप रहा है, यानी मस्कुलर प्रॉब्लम है। अगर मस्कुलर प्रॉब्लम है तो ये किसकी,
आप जानते भी हैं स्पास्टिक कंडीशंस है या पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाती है। तो दोनों कंडीशंस में डिपेंड करता है कि ये मस्कुलर प्रॉब्लम है। अगर मस्कुलर है तो लोअर मोटर न्यूरॉन है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से उसका कुछ लेना देना, स्टार्टिंग मैसेज जो होता है वो मसल को कंट्रोल करने के लिए छोटा सा इस जो सिग्नल होता है वो वहीं से आता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल बना ही नहीं पा रहा है वर्ड्स, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो डिपेंड करता है कि जो लिखने की प्रॉब्लम है वो कहाँ, आप उसको आइडेंटिफाई करिए कि वो किस लेवल पे है। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड के बाद की है तो लोअर मोटर, अगर उसके ऊपर की है तो अपर मोटर न्यूरॉन्स। कोशिश Okay, की है sir, मैंने only- सर आपकी बात आंसर देने का। Okay, thank you, sir. Only one question more, sir. That's enough. Sir, which type of ahara, what type of ahara can damage the communication passing of nervous system? देखिए, वात तो कहा जाता है ना, आयुर्वेद में भी कहा है यही कि जो वात जनित रोग है, ये पक्ष जितने भी है वात है, उसका काम ही यही है कि एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना, चाहे वो इम्पल्सेस हो या मैटर हो, दोनों को वो ले जाता है, उसमें हेल्प करता है डायरेक्टली, उसके बिना नहीं होता है। तो आहार की बात करें तो अगर वो वात है तो आप वात को न बढ़ाने वाले आहार ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कफ जनित आहार लेने लगे या वात ऐसे आहार लें जो बिल्कुल जिसमें वात बढ़े ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप वात अधिक एग्रीवेट ना हो ऐसे आहार ले सकते हैं। तो मैं डाइट का एक्सपर्ट तो नहीं हूं फिलहाल, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर डाइट नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा आहार लेना चाहिए। बट हाँ, ये बेसिक यही है कि ये चूंकि वात दोष से रिलेटेड सिस्टम है या उससे प्रॉब्लम है, तो ऐसे आहार लिए जा सकते हैं जो कि वात को न बढ़ाते हो, ज्यादा एग्रीवेट न करते हो। Thank you, sir. ओके, Thank you very much. सर मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। सर अगर रूक्ष द्रव्य लेंगे हम तो फिर वात बढ़ेगा। बिल्कुल। रूक्ष आहार विहार। हाँ, नहीं मैं समझा नहीं, आप क्या, आप मुझे पूछ रही हैं या बता सर रही हैं, अगर सर का आंसर रूक्ष दे रही गुण हैं? वाले द्रव्य लेंगे तो मतलब वात बढ़ता है। हाँ, तो वो आप सर के क्वेश्चन का आंसर दे रही हैं जो सर ने अभी पूछा था। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं जाहिर सी बात, आप जानते हैं मैं रचना का आदमी हूं, तो ज्यादा मैं आपको स्वस्थवृत नहीं बता सकता कि स्वस्थवृत में क्या आहार लेना चाहिए। तो वो आप बेहतर है कि उसी एक्सपर्ट से बात करें तो ज्यादा सही है। वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं, वो उन्हीं से रिलेटेड हो, ज्यादा अच्छा रहता है। Any more queries? If anyone wants to have some answer from sir, he can ask. He or she can ask. Dr. Misra, sir, is it modern people are telling about dopamine? What is the role of that, sir? सर ये तो फिजियोलॉजी में आ गया डोपामिन। व्हाट इज द रोल ऑफ डोपामिन? बहुत सारा डोपामिन का रोल है सर। Sir. डायरेक्टली में आपको कितने डोपामिन सारे रोल। Okay, sir. सर डोपामिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट्स होती हैं, सिग्नल देता है वो हमारी बॉडी को। अच्छा, अच्छा. Thank you, doctor. Thank you, sir. Misra, sir, thank you. बिल्कुल सर, बिल्कुल। Thank you, sir, Any once more again for questions? sharing your valuable knowledge. If anyone has any query again, they can ask now. स्टूडेंट्स आप बताओ, कुछ ठीक ठाक समझ में आया या नहीं आया? कोई भी स्टूडेंट? BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप बताइए कैसा लगा आपको सर का लेक्चर? Who is the CR? हेलो, एक्चुअली मैम अटेंडेंस का वो म्यूट किया हुआ है, नहीं तो फिर बीच बीच में डिस्टरबेंस होते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ ओके बिल्कुल। ओके 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 ओके।
ठीक है मैम, थैंक यू मैम थैंक फॉर यू गिविंग मी द वेरी मच अपॉर्चुनिटी। हाँ थैंक मैम, यू वेरी मच सर को भी हमारी तरफ से थैंक यू कहिएगा मैम, वालिया सर को। बिल्कुल हाँ, सर, हम आपका मैसेज ठीक है कन्वे कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत